Dear student, today we will learn most important 15 MCQs of chapter number 3, motion in a straight line, subject physics, standard 11 science. Now let's start question number 1. When a body is dropped from a tower, then there is an increase in its option number A, mass, option number B, velocity, option number C, acceleration, option number D is potential energy. Yes, give the correct answer within 5 seconds in comment box. Okay, check your knowledge. You know answer of these questions or not. Okay, within 5 seconds everyone give the answer. So correct answers of question number 1 is option number B, velocity. Velocity is the correct answers of question number 1. Now next question number 2. Which one of the following is a unit of the velocity? This is the very easy, everyone can give the answers. Now give the answer in comment box fast everyone. The option is kilogram, option number B is the meter, and option number C is meter per second, and option number D is second. Okay, the correct answer of question number second is option number C, meter per second. This is the correct answers of question number 2. Now next question number 3. Question number 3 is the ratio of the numerical values of the average velocity and average speed of a body is option number A, unity or less, option number B, less than unity, option number C, unity, option number D, unity or more. So give the correct answer within 5 seconds. What is correct answer of question number 3? Okay, comment me fast. So answer of question number 3 is option number A, unity or less. This is the correct answer of question 3. Okay, now next question number 4. A particle is moving with a constant speed along the straight line path. A force is not required to option number A, change its direction, option number B, increase its speed, option number C, decrease its momentum, and keep it move with uniform velocity. So correct answer of question number 4 is option number D, keep it moving with the uniform velocity. This is the correct answers of question number 4. Now next question number 5. Question number 5 is, see the question. A slope of velocity time graph for motion with uniform velocity is equal to option number A, 0, option number B, final velocity, option number C, initial velocity, and option number D, none of these. Okay, so everyone can say what is correct answers of question number 5. So give me answer in comment box fast. So answer of question number 5 is option number A. Correct answers of question number 5 is A, 0. Now next question number 6. Question number 6 is, which one of the following is unit of acceleration? A, meter per second, B, meter per second square, C, meter kilometer per hour, and option number D, centimeter per second. Acceleration की यूनिट बतानी है तो मीटर पर सेकंड A is wrong and C is also wrong and D is also wrong. So correct answer of question number 6 is B option, meter per second square. This is the correct answer of acceleration. Next question number 7. Okay, a boy start from the point A and travel to the point B at the distance 3 kilometer from A and return to A. If he takes 2 hours to do so,
his speed is. Tell first. What is correct answers of question number 7? Give in comment box. Give the answer in comment box. जल्दी से बोलिए. अगर कोई बॉय स्टार्ट करता है अब मूव करना ए एंड ट्रेवल टू बी डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम ए एंड रिटर्न बैक टू ए. अगर वो ए से चलता है 3 किलोमीटर एंड अगेन रिटर्न बैक टू ए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? टोटल डिस्टेंस. तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 + 3, 3 मूव किया तो कितना हो जाएगा? 6 मीटर. ओके. अब यहाँ पे आंसर है कि इफ़ ही टेक टू द 2 hours टू डू एंड व्हाट इज स्पीड. तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है? S = ठीक है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस था कितना? 6 एंड टाइम इज 2. कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर पर आवर. दिस इज करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. तो ऑप्शन नंबर A is the correct answer of question number 7. Okay, so you can see this is the correct answer. Now question number 8. The distance traveled by the object is directly proportional to the time taken. It is its acceleration increase, decreases, become 0, remain constant. Tell the answer of question number 8. क्या होगा? Increase, decrease, become 0. अगर डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? तो अगर वो अकॉर्डिंग टू द टाइम मूव कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस कवर हो रही, तो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है. और वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है. सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 is a body start from rest and travel 2 seconds for 2 seconds with the uniform acceleration of 2 meter per second. If the displacement make it the 16 meters, तो the time travel t is. अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें टाइम दिया गया, एक्सेलरेशन दिया है. यू नो एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम. हमें पता है ना A = क्या होता है? v/t. अगर हमें b चाहिए तो क्या लिख सकते हैं? AT. तो कितना है A इज गिवन दैट 2 है. 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा. तो 4 क्या है? 4 इज द वेलोसिटी. तो हमारे पास वेलोसिटी आ गया 4 मीटर पर सेकेंड. बट डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं पता है. डिस्प्लेसमेंट इज गिवन दैट 16 मीटर एंड वी वांट टू फाइंड द टाइम. तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो t = क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. अब यहाँ पे डिस्टेंस आप देख सकते हो कितना है? 16 है. तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस = 16. और जो हमारा वेलोसिटी था वो कितना था? 4 अभी मैंने निकाला था. तो कितना है? 4 4 जा 16. तो कितना आएगा? 4 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. तो कहने का ऑप्शन नंबर A इज द correct answers of question number 9. So this is the correct. Okay, now question number 10. A body start from rest and travel with the acceleration of 2 meter per second. Same way you can get the answer. After t second, its velocity is 10 meter per second. Then time is acceleration दिया है, velocity is also given, time we want to find. तो कैसे करेंगे? Do first. इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको. तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो इसका आंसर अपने को लिखना है. यू नो फार्मूला यहाँ लिख रहे हैं. A = क्या होता है? v/t. ओके. तो बट वी वांट टू फाइंड द टाइम. वेलोसिटी गिवन है तो टाइम क्या होगा? अगर वी वांट टू फाइंड द टाइम तो v/a लिखेंगे. एंड वैल्यू ऑफ v इज गिवन दैट v इज कितना है? 10 एंड a इज 2. तो कितना होगा? 2 5 जा 10. तो 5 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस. तो हम क्या लिख सकते हैं? ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. 5 सेकेंड. दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन डायमेंशनल मोशन। आप देख के आपको आंसर बताना है। मोशन ऑफ ट्रेन रनिंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, मोशन ऑफ सैटेलाइट, मोशन ऑफ एयर पार्टिकल एंड मोशन ऑफ स्नेक। ओके, आपको ही बताना है। टेल फास्ट विद इन 5 सेकेंड व्हाट इज करेक्ट आंसर। दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, वन डायमेंशनल मतलब होता है एक ही एक्सिस में मूव करे, चाहे कोई बॉडी एक्स पे, वाई पे, जेड पे, एनी। तो विच इज करेक्ट आंसर, एवरी वन कैन गिव द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। तो क्या होना चाहिए आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑप्शन नंबर ए, मोशन ऑफ ए ट्रेन रनिंग ऑन द स्ट्रेट ट्रैक। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, द एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड फ्रॉम डैश। ऑप्शन नंबर ए, एरिया अंडर द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, B is the slope of displacement time graph, C is the area under the velocity time graph, and option number D is slope of velocity time graph. Can you say which is correct answer? एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो वहाँ पे क्या किसके बीच में ग्राफ होना चाहिए? इट इज़ कंपल्सरी कि ग्राफ शुड बी वेलोसिटी एंड टाइम, देन वी कैन गेट द एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन के लिए अगर B और T के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो स्लोप इज़ देयर, स्लोप इज़ द एक्सेलरेशन। तो करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑप्शन नंबर डी, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस एंड देन इट रिप्रेजेंट दैट द ऑब्जेक्ट इज, क्या बताएगा? बताइए, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींचा जाता है and then object is parallel to the time x graph and this is the represent to the object। तो ऑब्जेक्ट को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पहला है एट द ऑप्शन नंबर ए एट द रेस्ट इन द यूनिफॉर्म मोशन, ऑप्शन सी इन द एक्सेलरेशन मोशन एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ एफ। तो करेक्ट आंसर, अगर अब एक्स और बी के बीच में ग्राफ खींचा जाता है, देखिए इस तरह से हम ग्राफ आपको बताते हैं, ऐसे हम खींचते हैं ग्राफ, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन नंबर 13, तो ग्राफ कैसे खींचेंगे? ये हमारा ग्राफ है। अगर कोई लाइन ये पैरेलल ऑफ द एक्स एक्सिस है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो क्या होगा कि बॉडी जो है रेस्ट में है क्योंकि ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये हमारा टाइम एक्सिस, टाइम डिस्प्लेसमेंट है, भी है, टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन वही है, तो क्या हो जाएगा? तो दिस इज द रेस्ट पोजीशन। तो आप करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑप्शन नंबर ए एट द रेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड इफ इट ट्रेवल विद द एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड and its displacement at the end of 3 seconds is, okay, calculate it, what is answer of this? क्योंकि यहाँ पे acceleration given that and time is given that, we want to find the displacement। बहुत easy question है, everyone can get the answer। जल्दी से इसको सॉल्व करिए। acceleration दिया है and time is given that, displacement we want to, यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको पहले वेलोसिटी निकालना होगा, वेलोसिटी निकालने के बाद उसमें वैल्यू पुट करना है तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑप्शन नंबर ए 9 मीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जीरो एंड व्हेन ए पार्टिकल इन द मोशन फॉर सम टाइम। ऑप्शन नंबर ए डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर बी नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर सी डिस्टेंस एंड ऑप्शन नंबर डी इज स्पीड। तो कैन यू से व्हाट इज़ करेक्ट आंसर? 15 का करेक्ट आंसर क्या है? ठीक है, किसकी वैल्यू जीरो होती है? सम टाइम मोशन में। तो गिव द करेक्ट आंसर विद इन 5 सेकेंड इन कमेंट बॉक्स। जल्दी से कमेंट करिए आपको और चेक योर सेल्फ की आर यू राइट और रॉन्ग, ओके। तो करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑप्शन नंबर ए, डिस्प्लेसमेंट इज करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 15
In this way we have completed 1 to 15 MCQ of chapter number 13. This question is very important. 1 2 time you will revise and check your knowledge and learn all 1 to 15 questions. Okay, thank you.